Hello guys, welcome to this session. Today we are going to discuss MCQs on Maratha Empire. And at the end of this session guys, I will give you the complete overview of Maratha Empire in the form of one-liners. So watch the complete session guys, and if anyone is visiting the channel for the first time, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon also. So let us start our session. First question is, when was Shivaji born and when did he assume the title of Chhatrapati? A option is 1626 and 1675. B option is 1625 and 1671. C option is 1627 and 1661. D option is 1630 and 1674. The right answer is option D, that is Shivaji was born in the year 1630 and he assumed the title of Chhatrapati in the year 1674. Okay. Next question is, where was the capital of Shivaji? So A option is Raigad, B is Sindh Fort, C option is Pune and D option is Javli. So right answer is option A, that is रायगढ़. जो शिवाजी की कैपिटल थी वो कहाँ पर थी? वो थी रायगढ़ में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मराठा डोमिनियन ऑफ शिवाजी वाज नोन एज. ए ऑप्शन इज मुल्क-ए-कादिम, बी ऑप्शन इज स्वराज्य, सी ऑप्शन इज महाराजा एंड डी ऑप्शन इज मराठा एम्पायर. So right answer is option B, that is Savrajya. Next question is, the large contingent under Afzal Khan to suppress Shivaji was sent by the ruler of. A option is Bidar, B option is Bijapur, C option is Golconda and D option is Khandesh. So right answer is option B, that is Bijapur. और बीजापुर पे उस टाइम जो रूल करने वाले थे वो थे आदिल शाह. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद द हेल्प ऑफ टाइगर क्लॉज दैट इज बाघ नख Shivaji killed. A option is Afzal Khan, B is Shaista Khan, C option is Muhammad Khan and D option is Aurangzeb. So right answer आएगा option A, that is अफजल खान. अफजल खान को भेजा जाता है आदिल शाह के द्वारा शिवाजी पर अटैक करने के लिए और वो शिवाजी क्या करते हैं, उनको बाघ नख की हेल्प से उनकी हत्या कर देते हैं. And this battle which was fought between Shivaji and Afzal Khan, this battle known as Battle of Pratapgarh, and the battle was fought in the year 1659, right? Next question is, in 1663 AD, who was deputed by Aurangzeb to put down the rising power of Shivaji? A option is Khafi Khan, B option is Shaista Khan, C option is Diler Khan and D option is Mubaris Khan. So right answer is option B, that is Shaista Khan. Next question is, in which city was Shivaji interned when he escaped from the custody of the Mughals? A option is Gwalior, B is Agra, C option is Delhi and D option is Kanpur. So right answer is option B, that is Agra. Next question is, the Mughal general who decisively defeated Shivaji and forced him to conclude the Treaty of Purandar was. A option is Shaista Khan, B is Raja Jai Singh, C option is Prince Muazzam and D option is Dilir Khan. So right answer is option B, that is Raja Jai Singh. जो Treaty of Purandar थी, it was signed between Shivaji and Raja Jai Singh of Amber. Okay. Next question is, the first military campaign of Shivaji was against. A option is Golconda, B is Bijapur, C option is Raigad and D option is Javli. The right answer is option B, that is Bijapur. Next question is, the last campaign of Shivaji was against. A option is Jinji, B option is Raigad, C option is Panhala and D option is Bijapur. The right answer is option A, that is Jinji. Next question is, when did Shivaji died? A option is 1676, B is 1677, C option is 1680 and D option is 1685. So Shivaji was died in the year 1680, that is option C is the right answer. Next question है, name the religious personality who exercised a great influence over Shivaji. A option is Tukaram, B option is Guru Nanak Dev, C option is Mirabai and D option is Guru Ramdas. So right answer is option D, that is Guru Ramdas. Next question is, Shivaji defeated the Mughals in the battle of. देखिए, जब शिवाजी जो है मराठा एम्पायर की उन्होंने स्थापना की और उस पर रूल कर रहे थे, एट द सेम टाइम जो नॉर्थ इंडिया में जो मुगल एम्पायर रूल कर रहे थे, सो ही वाज औरंगजेब. ओके. तो औरंगजेब को जो है वो फर्स्ट टाइम या मुगल्स को फर्स्ट टाइम कौन से बैटल में हराते हैं, ये पूछा जा रहा है. सो ए ऑप्शन इज पुरंदर, बी इज रायगढ़, सी ऑप्शन इज सलहेर एंड डी ऑप्शन इज शिवनेरी. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज Shivaji defeated Mughals in the Battle of Salher, which was fought in the year 1672. Okay, the year is also important. And one more important point, that the last battle which was fought by Shivaji with the Mughals, that battle was Battle of Sangamner, and this battle was fought in the year 1679. Right?
Next question is, where was Shivaji formally crowned as Chhatrapati? A option is Pune, B is Kolhapur, C option is Raigad, and D option is Ahmednagar. So right answer is option C, that is Raigad. एंड जो शिवाजी की कैपिटल थी वो भी कहाँ पर थी? सो इट वाज आल्सो एट रायगढ़. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ब्रिटिशर प्रेजेंट एट द कोरोनेशन ऑफ शिवाजी वाज? ए ऑप्शन इज जॉर्ज ऑक्सनडन, बी ऑप्शन इज जॉब चार्नोक, सी ऑप्शन इज एलमस्टीन, एंड डी ऑप्शन इज सर जॉन मैलकॉम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जॉर्ज ऑक्सनडन. Next question is, name the priest who presided the coronation of Shivaji. A option is Vishweshwara Bhatta, B option is Vaman Pandit, C option is Ramdas, and D option is Divakara Bhatta, and A option is Vishweshwara Bhatta. Next question is, who assumed the title of Hindua Dharma Udharak, that is protector of the Hindu faith? A option is Guru Ramdas, B is Shivaji, C option is Baji Rao first, and D option is Balaji Baji Rao. So right answer is option B, that is Shivaji, and Shivaji assumed the title of Chhatrapati and Dharma Udarak during his coronation. And जो other title थे शिवाजी के पास वो थे शककर्ता and क्षत्रिय कुलवंतास. Okay. Next question is, Peshwa's secretariat at Pune, the center of the Maratha government, was known as? A option is Hazur Daftar, B is Al-Bariz Daftar, C option is Chalte Daftar, and D option is Peshwa Daftar. The right answer is option A, that is Huzur Daftar. Next question is, identify the European power from whom Shivaji obtained cannons and ammunition. A option is the French, B is the Portuguese, C option is the Dutch, and D option is the English. So the right answer is option B, the Portuguese. Next question is, Aurangzeb failed to defeat Shivaji because the? A option is Mughal army grew unmanageable, B option is Marathas were experts in guerrilla warfare, C option is Mughals had no navy, and D option is Mughal general were treacherous. So right answer is option B, that is Marathas were experts in guerrilla warfare. That's why he able to defeat Aurangzeb. Next question is, the first raid of Surat under the leadership of Shivaji happened in? A option is 1664, B is 1665, C option is 1661, and D option is 1660. So the first raid of Surat was made by Shivaji in the year 1664. Next question is, Shivaji administration owed its origin to the principles laid down by? A option is Akbar, B is Sher Shah, C is Kautilya, and D option is Adi Granth. So right answer is option C, that is Kautilya. Next question is, Ashtapradhan was a council of minister. A option is in the Gupta administration, B is in the Chola administration, C is in the Vijayanagar administration, and D is in the Maratha administration. So the right answer is option D, that is in the Maratha administration. Maratha administration में क्या होता था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी जिसको कहा जाता था अष्टप्रधान. अष्टप्रधान मीन्स 8 मिनिस्टर उस काउंसिल में होते थे. उन 8 मिनिस्टर की जो मतलब पोस्टें थी वो 8 पोस्टें थी. जैसे पेशवा थे वो प्राइम मिनिस्टर होते थे, अमात्य और मजूमदार उनको फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, एंड थर्ड है वाकिया नाविस, ये होम मिनिस्टर हुआ करते थे, एंड सुमंत एंड दाबे की जो पोस्ट थी इस पोस्ट पे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर काम करते थे. फिफ्थ पोस्ट है सचिव और सुरनाविस, ये हेड ऑफ रॉयल करस्पॉन्डेंस होते थे, एंड पंडित राव और सदर ये रिलीजियस अफेयर्स को देखते थे, एंड है सर आई नबुआत, ये आर्मी ऑफिसर होते थे या सेनापति, और होते थे न्यायाधीश जो कि एक जुडिशियरी ऑफिसर होते थे. ओके. तो आपको ये सभी पोस्ट जो है याद रखनी है, एग्जाम में इन पर जो है क्वेश्चन बनता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एस्टेब्लिश्ड अष्टप्रधान? ए ऑप्शन इज चंद्रगुप्ता, बी इज अशोका, सी इज हर्षवर्धना, डी इज शिवाजी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज शिवाजी. शिवाजी जो है इसकी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं अष्टप्रधान, दैट इज काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स की. ओके. Next is, in the Shivaji's council of minister, the prime minister was called? A option is Peshwa, B is Sachiv, C is Mantri, D option is Sumanta. इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट पे होता था उसको क्या कहा जाता था. सो राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज पेशवा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मराठास लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन? ए ऑप्शन इज रियोटवाड़ी, बी इज परमानेंट सेटलमेंट, सी ऑप्शन इज महलवाड़ी, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव. The right answer is option A, that is Riotwadi. Next question is, the Maratha claim of revenue for protection is known by what name? A option is Sardeshmukhi, B is Chauth, C option is Abwab, and D option is Jamdani. So right answer is option B, that is Chauth.
लिसन गाइस, मराठा एम्पायर में बेसिकली दो तरह के टैक्स होते थे। फर्स्ट वन वाज चौथ। चौथ मीन्स 1/4 और 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू जो भी होता था वो नेबरिंग स्टेट को पे करना होता था मराठा एम्पायर को, ताकि जो है मराठा एम्पायर उन पे कोई रेड ना करे, और अगर कोई आउटर पावर अगर इन्वेड करती है उनके रीजन पे, तो मराठा एम्पायर जो है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट था सरदेशमुखी। सरदेशमुखी इज एन एडिशनल 10% टैक्स विच वॉज लिवाइड ऑन द चौथ। ओके, तो आपको ये दो तरह के टैक्स याद रखने हैं फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी देयर वाज अ फाइट फॉर द सक्सेशन बिटवीन ए ऑप्शन इज संभाजी एंड द विडो ऑफ शिवाजी, बी ऑप्शन इज संभाजी एंड द बाजीराव, सी ऑप्शन इज राजाराम एंड संभाजी, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। हमने प्रीवियस डिस्कस किया दैट की डेथ हो जाती है शिवाजी की इन द ईयर 1680। आफ्टर दैट जो इनके बेटे होते हैं उनके बीच में फाइट होती है फॉर द सक्सेशन। ओके, तो वो उनके जो बेटे थे वो थे राजाराम एंड संभाजी। जो संभाजी थे ये इनके एल्डर सन थे एंड राजाराम वाज हिज यंगर सन। ओके, सो इन दोनों के बीच में आप फाइट होती है और संभाजी जो है थ्रोन को संभालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्राह्मण मिनिस्टर ऑफ संभाजी सन एंड द सक्सेसर ऑफ शिवाजी upon whom he invested the title of pinnacle of poets was A option is Kavindra Acharya, B is Poet Kalash, C option is Kavi Bhushan, and D option is Kavi Martanda. So right answer is option B, that is Kavi Kalash. जो संभाजी होते हैं वो son and successor of Shivaji. He provide the title of pinnacle of poets to Kalash. Okay. Next question is the strongest Maratha rule after Shivaji was A option is Bajirao first, B is Balaji Bajirao, C option is Balaji Vishwanath, and D option is Nana Sahib. The right answer is option A, that is Bajirao first. Let me discuss some more important points related to Bajirao first. तो जो बाजीराव फर्स्ट होते थे वो बिलोंग करते थे पेशवा डायनेस्टी को। एंड अगर हम बात करें शिवाजी की जिन्होंने मराठा एम्पायर की शुरुआत की वो बिलोंग करते थे भोसले डायनेस्टी को। ओके, जो बाजीराव फर्स्ट थे he was son of Balaji Vishwanath. Okay, and Bajirao first served as Peshwa or general to the 5th Maratha Chhatrapati Shahu from the year 1720. and ये जो छत्रपति शाहू है ये कौन है? तो हमने प्रीवियस डिस्कस किया दैट द सक्सेसर एंड द सन ऑफ शिवाजी होते हैं वो होते हैं संभाजी। तो संभाजी की जो आगे बेटे होते हैं वो होते हैं शाहू। ओके, उनके अंडर जो है ये एज अ पेशवा सर्व करते हैं बाजीराव फर्स्ट। और बाजीराव फर्स्ट जो है इनके टाइम पे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मराठा रूल रहता है शिवाजी के बाद, शिवाजी की डेथ के बाद। ओके, एंड जो बाजीराव फर्स्ट होते हैं ही इज ऑल्सो नोन एज बाजीराव बल्लाल। ओके, next question is Shahuji made the capital of Maratha Empire at A option is Rajgarh, B is Tara, C option is Panhala, and D option is Pune. So right answer is option B, that is Tara. And जो शिवाजी की कैपिटल होती थी वो होती थी at राजगढ़। Okay. Next question is at the time of Aurangzeb's death, the Maratha leadership was in the hands of A option is Shambhaji, B is Rajaram, C option is Jijabai, and D option is Tarabai. So right answer is option D, that is Tarabai. And who was this Tarabai? So she was the widow of Rajaram. Okay. Next question is Tarabai, who concluded the affairs of the Maratha government from 1700 to 1707 AD, was the widow of the Maratha king. पूछा जा रहा है कि दैट ताराबाई जो है मराठा एम्पायर को संभालती है फ्रॉम द ईयर 1700 टू 1707, तो वो किस मराठा किंग की जो है विडो होती हैं? संभाजी, बी इज शिवाजी टू, सी ऑप्शन इज राजा राम, एंड डी ऑप्शन इज शिवाजी थर्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज राजा राम। एंड हु वाज राजा राम? सो ही वाज यंगर सन ऑफ शिवाजी। ओके, next question is Balaji Vishwanath was made first Peshwa of Maratha Empire during the reign of A option is Shambhaji, B option is Shahuji, C option is Rajaram, and D option is Shivaji too. So right answer is option A, that is Shambhaji, and Shambhaji was the son and the successor of Shivaji. Next question is the Maratha kingdom under the Peshwa was A option is loose federation, B is a military state, C option is a confederacy, and D option is a regency of the Peshwa. So right answer is option C, that is a confederacy. नेक्स्ट यहाँ पर जो है मैंने कुछ डायनेस्टी या अगर हम किंगडम की बात करें और कौन सी डायनेस्टी कौन से रीजन पर रूल करती है इस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, तो जो पेशवा होते हैं दे रूल ओवर द पूना
गायकवाड्स रूल ओवर द बड़ौदा टेरिटरी, भोंसले रूल ओवर नागपुर, एंड होलकर जो है इंदौर पे रूल करते थे, एंड सिंधिया रूल ओवर द ग्वालियर, एंड पवार जो है रूल करते थे वो करते थे धर रीजन पर। ओके, सो आपको ये एग्जाम के लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड फाउंडर ऑफ द मराठा किंगडम वाज। अगर हम बात करें सिंपली वो वाज द फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम, तो वो थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। ओके, बट वो वाज द सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा किंगडम। So the first option is Tarabai, B is Peshwa Balaji Vishwanath, C option is Peshwa Bajirao, and D option is Shahu. So right answer is option B, that is Peshwa Balaji Vishwanath, known as the second founder of Maratha Kingdom. Okay. Next question is who among the Maratha Peshwa followed the ideal of Hindu Padvat Shahi? A option is Bajirao first, B is Balaji Vishwanath, C option is Narayana Rao, and D option is Madhava Rao. The right answer is option A, that is Bajirao first. And Bajirao first was the successor or son of Balaji Vishwanath. Okay. Next question is Maratha Peshwa Balaji Bajirao II is also famous as. A option is Nana Sahib, B is Rai Sahib, C option is Raja Sahib, and D option is Aflatun of Marathas. So right answer is option A, that is Nana Sahib. Next question is the third battle of Panipat was fought between. A option is Balaji Bajirao and Ahmad Shah Abdali, B option is Babur and Ibrahim Lodi, C option is Akbar and Himu, and D option is Aurangzeb and Taimur. So right answer is option A, that is Balaji Bajirao and Ahmad Shah Abdali. And the third battle of Panipat was fought in the year 1761. And who was this Ahmad Shah Abdali? So he belongs to the Durrani Empire, which ruled over the Afghanistan. Okay. Next question is who among the following annexed islands of Bassi and Salshere from the Portuguese? So A option is Bajirao first, B is Balaji Vishwanath, C option is Balaji Bajirao, and D option is none of the above. So right answer is option A, that is Bajirao first. Next question is who was the last Peshwa of Maratha? A option is Bajirao second, B is Balaji Vishwanath, C option is Balaji Bajirao, and D option is none of the above. So right answer is option A, that is Bajirao II was the last Peshwa of Maratha. And who was first Peshwa? So he was Balaji Vishwanath. Okay. Now let me take the overview of Maratha Empire in the form of one-liners. Okay. तो आप प्लीज सेशन को थोड़ा फोकस होकर देखिए ताकि चीजें एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स ना हो. ओके. First point is Shivaji born at Shivneri Fort in 1627. Listen guys, अब शिवाजी का जो बर्थ ईयर है कहीं पर आपको मिलेगा 1627 और कई बुक्स में दिया है 1630. ओके, सो आपको दोनों ही ईयर याद रख लेने हैं. और शिवनेरी फोर्ट लोकेटेड है इन पूना महाराष्ट्र में. ओके. एंड जो शिवाजी के फादर थे हिज नेम वॉज शाहजी भोंसले, मदर्स नेम वॉज जीजाबाई, एंड हिज रिलीजियस टीचर वॉज समर्थ रामदास. ओके. एंड इस गार्डियन और जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे उनका नाम था दादाजी कोणादेव. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज शिवाजी कॉन्कर्ड मैनी ऑफ द फोर्ट्स. ओके, जिसमें जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने हैं वो है सिंहगढ़ फोर्ट, जो ये कॉन्कर करते हैं इन द ईयर 1643. आपको ईयर याद रखना है. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फोर्ट है वो है पुरंदर फोर्ट, और जिसको ये एक्वायर करते हैं इन द ईयर 1648. जो अगला इंपॉर्टेंट फोर्ट है दैट वाज राजगढ़ फोर्ट और रायगढ़ फोर्ट, इसको ये कॉन्कर करते हैं इन द ईयर 1656. ओके. लेट मी मूव फर्दर. नेक्स्ट जो क्या होता है, अफजल खान जो है शिवाजी पर अटैक करते हैं, और अफजल खान को भेजता कौन है? तो इनको भेजने वाले जो रूलर ऑफ बीजापुर थे वो थे आदिल शाह. बट लेटर ऑन क्या होता है, बैटल ऑफ प्रतापगढ़ होता है अफजल खान एंड शिवाजी के बीच में इन द ईयर 1659, जिसमें क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ बागनक ये अफजल खान को जो है मार देते हैं. ओके. जो नेक्स्ट जो फेमस अटैकर है जो इन पर अटैक करता है शिवाजी पर वो था शाइस्ता खान, जो कि गवर्नर ऑफ दक्कन होता है, जिनको भेजा जाता है औरंगजेब के द्वारा शिवाजी पर अटैक करने के लिए. ओके. बट शिवाजी इनको भी क्या करते हैं, डिफीट कर देते हैं इन द ईयर 1663. ओके. और शिवाजी जो है सूरत को जो है प्लंडर करते हैं इन द ईयर 1664. आपको ये ईयर याद रखना है. राइट. नेक्स्ट पॉइंट है राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज देन अपॉइंटेड बाई औरंगजेब. मीन्स वो फिर औरंगजेब जो है मुगल एम्परर औरंगजेब जो है शिवाजी पर अटैक करने के लिए जो अम्बेर का जो राजा होता है जिनका नाम था जय सिंह उनको उनके पास भेजता है, और वो धोखे से जो है उनका जो पुरंदर का फोर्ट है उसको जो है उस पर विजय हासिल करता है. और फिर जो है शिवाजी
और जय सिंह ऑफ अम्बेर के बीच में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटी है। आपको इसका ईयर याद रखना है। ये साइन होती है इन द ईयर 1665। और इस ट्रीटी के अंडर क्या होता है दैट शिवाजी जो है अपने जो इनके पास टोटल 45 फोर्ट्स होते हैं, और ये इस ट्रीटी के अंदर अपने जो 23 फोर्ट्स होते हैं वो जो है मुगल्स को जो है मतलब मुगल्स के अंडर वो आ जाते हैं, और वो कन्विंस भी हो जाते हैं कि वो अपने शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ उनके औरंगजेब के मतलब कोर्ट में जाएंगे इन द आगरा। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज औरंगजेब कैप्चर शिवाजी। जब शिवाजी जो है अपने बेटे संभाजी के साथ औरंगजेब के कोर्ट में पहुंचते हैं तो औरंगजेब जो है उनको और उनके बेटे को कैप्टिवेट कर देते हैं इन द आगरा। ओके, बट शिवाजी जो है फिर कुछ टाइम बाद वहां से भागने में सक्षम रहते हैं, तो वो आ जाते हैं अपने मतलब एम्पायर में। ओके, एंड फिर क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट इज इन 1674 शिवाजी वॉज कॉरोनेटेड एट हिज कैपिटल रायगढ़, और वो अपनी कैपिटल जो है रायगढ़ घोषित करते हैं और खुद का कोरोनेशन करते हैं इन द ईयर 1674। और ये टाइटल एज्यूम करते हैं छत्रपति एंड हिंदुआ धर्म उद्धारक। ओके, दैट इज प्रोटेक्टर ऑफ हिंदुइज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज शिवाजी जो है शिवाजी के काफी ज्यादा बैटल्स फिर मुगल्स के साथ रहते हैं, और इनका जो लास्ट कॉन्क्वेस्ट होता है वो होता है इन द कर्नाटका ड्यूरिंग 1677 और 80 तक। नेक्स्ट पॉइंट इज शिवाजी डिवाइडेड। उनकी जितनी भी टेरिटरी थी शिवाजी की वो 3 प्रोविंसेस में डिवाइड थी। फिर आगे जो फर्दर प्रोविंसेस थे उनको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। एंड जो हेड ऑफ द प्रोविंस होते थे उनको वॉइसराय कहा जाता था, और जो प्रोविंस होते थे उनको फर्दर प्रांत्स में डिवाइड किया हुआ था। प्रांत्स को फर्दर जो है प्रांगणास और तरफ्स में डिवाइड किया हुआ था। एंड जो लोएस्ट यूनिट थी दैट वाज विलेज, और विलेज का जो हेड था वो पटेल और हेडमैन कहा जाता था उसको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज शिवाजी वॉज हेल्प बाय द अष्ट प्रधान दैट इज 8 मिनिस्टर। शिवाजी ने जो है हमने प्रीवियसली क्वेश्चन किया था, इन्होंने 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाई हुई थी जिसको कहा जाता था अष्ट प्रधान। और जो मराठा एम्पायर में इंपॉर्टेंट एक्ट थे वो 2 थे दैट इज चौथ एंड सरदेशमुखी, जिनको कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ओके, लेट वी मूव फर्दर। जो आगे फिर राइन होता है जब शिवाजी की डेथ हो जाती है इन द ईयर 1680, तो उनके जो सक्सेसर और जो सन होते हैं वो होते हैं संभाजी। पहले तो संभाजी और राजा राम दोनों इनके बेटे होते हैं। जो एल्डर वन था वो संभाजी, इन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें संभाजी जो है थ्रोन को जो है एक्वायर कर लेते हैं, और ये जो है आगे फिर मराठा एम्पायर को संभालते हैं। ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि जो संभाजी होते हैं उन पर जो है मुगल्स द्वारा अटैक किया जाता है और उनकी जो है हत्या कर दी जाती है उस दौरान में। फिर उसके बाद जो सक्सेसर रहते हैं जो थ्रोन को संभालते हैं वो होते हैं राजा राम। तो राजा राम क्या करते हैं अपने मिनिस्टर की हेल्प से थ्रोन पर बैठ जाते हैं, और वो जो है अपनी कैपिटल जो है राजगढ़ से शिफ्ट कर देते हैं जिंजी इन द ईयर 1689। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मुगल जो है उन पर दोबारा इन्वेड ना करें। ओके, फिर जो जब राजगढ़ पर जो है दोबारा जब वो अटैक करते हैं मुगल्स, तो वो संभाजी की जो वाइफ होती है और उनके बेटे शाहू होते हैं उनको वो अपने साथ ले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज राजाराम डाइड एट सतारा विच हैड बिकम द कैपिटल आफ्टर द फॉल ऑफ जिंजी टू मुगल्स इन 1689। फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको एग्जाम के लिए याद रखना है वो है कि राजाराम क्रिएटेड द न्यू पोस्ट जिसको कहा जाता था प्रतिनिधि। हमने प्रीवियस डिस्कस किया दैट की जो अष्ट प्रधान थी वो काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स होते थे जिसकी स्थापना की गई थी शिवाजी के द्वारा। तो जो राजाराम होते हैं वो एक न्यू पोस्ट क्रिएट करते हैं और उस पोस्ट का नाम था प्रतिनिधि। और अब जो है टोटल मिनिस्टर कितने हो गए थे, सो 9 मिनिस्टर। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। लेट वी मूव फर्दर। नेक्स्ट इज ताराबाई। सो ताराबाई जो है वो विडो होती है राजा राम की। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया दैट राजा राम वाज डाइड एट सतारा। ओके, उसके बाद जो पिक्चर में आती हैं वो होती हैं ताराबाई, क्योंकि जो संभाजी की वाइफ होती हैं और उनके बेटे जो शाहू होते हैं उनको मुगल जो है ले जा चुके होते हैं अपने साथ। ठीक है, और फिर जो है ताराबाई ही जो है पूरा जो है मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन उसको संभालती है। ठीक है, क्योंकि उनके बेटे जो राजा राम के और ताराबाई के जो बेटे थे शिवाजी टू वो उस टाइम बहुत छोटे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है शाहू जी। अब देखिए शाहू जी का जो रूलिंग पीरियड है वो है 1707 से 1749। हमने देखा कि शाहू जी को जो है मुगल जो है अपने साथ ले जाके जो है उनको बंदी बना देते हैं, बट 1707 में क्या होता है औरंगजेब की जो है डेथ हो जाती है। ओके, फिर जो अगले जो मुगल जो सक्सेसर होते हैं
वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते या इतने मतलब क्रूर नहीं होते, और वो क्या करते हैं फिर जो मुगल एम्पायर बहादुर शाह होते हैं वो शाहू को जो है छोड़ देते हैं और वो अपने जो है मराठा एम्पायर में वापस आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ताराबाई जो है रूल कर रही होती हैं, तो वो ताराबाई के साथ जो है युद्ध लड़ते हैं और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ खेर, जो होता है 1700 में। आपको ये बैटल याद रखना है फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, इन दिस बैटल शाहू जी डिफीटेड द ताराबाई एंड कैप्चर्ड द सतारा। ओके, सो ठीक है, अभी सतारा पे रूल तो हो जाता है शाहू का, बट जो साउदर्न पार्ट होता है मराठा किंगडम का जिसकी कैपिटल थी कोल्हापुर, उस पे जो है स्टिल जो राजा राम के बेटे थे शिवाजी टू, और लेटर ऑन जो उनके आने वाले फर्दर सक्सेसर या बेटे कहें वो थे संभाजी टू, उस पर वो ही रूल करते हैं। ओके, जो सतारा होती है उस पर शाहू का रूल हो जाता है। वैसे बेसिकली जो मराठा अगर हम ओवरऑल बात करें तो शाहू ही जो है उसके किंग रहते हैं। ठीक है, फर्दर देखिए गाइस, अब जब शाहू जी का रूलिंग पीरियड होता है तो उसी टाइम में जो है राइज ऑफ पेशवा देखने को मिलता है। जो इनमें एक ट्रीटी याद है, ट्रीटी आपको याद रखनी है, वो है ट्रीटी ऑफ सगोला, जो साइन होती है शाहू जी टू एंड शिवाजी टू के बीच में। शिवाजी टू जो है राजा राम के बेटे थे, जो साउदर्न जो है कोल्हापुर के ऊपर जो है वो रूल कर रहे होते हैं, एंड शाहू जी के बीच में ट्रीटी साइन होती है जिसमें ये मतलब एक डिसाइड करते हैं कि जो पेशवा होंगे वो ही आगे जो है पूरा मराठा एम्पायर या वो ही पावरफुल होंगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो जो आगे बालाजी विश्वनाथ होते हैं फिर वो होते हैं फर्स्ट पेशवा। ओके, फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, एंड जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं ही मेड द पोस्ट ऑफ पेशवा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एज वेल एज हेरिडिटरी। ओके, फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो बालाजी विश्वनाथ होते हैं ही कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट विद सैयद ब्रदर्स, जिनको कि किंग मेकर्स भी कहा जाता था, इन द ईयर 1719। इस ट्रीटी के अंडर क्या होता है, डिफाइन होता है कि जो मुगल एम्परर जो है फरूख सियारबी जो है ही रिकॉग्नाइज्ड शाहू एज द किंग ऑफ द स्वराज्य। ओके, एंड जो एग्रीमेंट की 1719 होता है इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ मराठा। राइट, नेक्स्ट इज बाजीराव फर्स्ट, एंड हु वाज बाजीराव फर्स्ट, so he was son and successor of Balaji Vishwanath. Okay, एंड बाजीराव फर्स्ट के टाइम पे ही जो है मराठा एम्पायर जो है दोबारा जो है एक पावरफुल स्टेट में आ पाता है, क्योंकि जो है ये गुरिल्ला टेक्निक्स को जानते होते थे जो कि शिवाजी जानते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बाजीराव फर्स्ट conquered बस्सी एंड सेल्सेट फ्रॉम द पोर्टुगीज इन द ईयर 1739, and Bajirao first also defeated the Nizam ul Mulk near Bhopal and concluded the Treaty of Doraha Sarahi. Okay, नेक्स्ट है बालाजी बाजीराव। उसके बाद बाजीराव फर्स्ट के सक्सेसर होते हैं वो होते हैं बालाजी बाजीराव, जिनको कि नाना साहिब भी कहा जाता है। ओके, और इन्हीं के टाइम पीरियड के दौरान जो है साहू की डेथ होती है इन द ईयर 1749 में, और जो पिछले वाले जो दो पेशवा रहे थे बालाजी विश्वनाथ एंड बाजीराव फर्स्ट, उस टाइम पर जो है साहू का जो थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस था, मतलब उनको एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में, बट उसके बाद टोटली जो है पावर जो है वो पेशवा के अंडर चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बालाजी बाजीराव साइंड एन एग्रीमेंट विद द लेटर मुगल एम्पर अहमद शाह, एंड इस एग्रीमेंट के दौरान क्या होता है कि जो पेशवा होते हैं वो मुगल्स को भी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अगर कोई आउटर एनिमी जो है उन पर अटैक करता है, और उनको जो है चौथ पे करना पड़ेगा मराठा एम्पायर को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो होता है 1761 में। इस बैटल में क्या होता है, मराठा एम्पायर की हार होती है, जिससे कि पेशवा बालाजी बाजीराव को एक शॉक लगता है ड्यू टू हिज डिफीट, और इनकी भी जो है डेथ हो जाती है 6 मंथ के बाद। ठीक है, इसी बैटल को जो है कहा जाता है जिसके बाद जो है मराठा एम्पायर का एंड हो जाता है। सो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इज इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज जो सक्सेसर ऑफ बालाजी बाजीराव होते हैं वो माधव राव होते हैं, नारायण राव होते हैं, सवाई माधव राव होते हैं, बाजीराव टू होते हैं। ये आपको जब ब्रिटिशर्स का जब अराइवल होता है इंडिया में उनके साथ जो है देखने को मिलेंगे कन्फ्लिक्ट्स, बट यहाँ से आपको याद रखना है दैट वो वाज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर, so he was Bajirao II. Okay, so that's it guys. I hope that every points will be clear to you. So if you love the content, so please give a one thumbs up to video. We will meet soon in the next session guys. Till then, bye bye and take care.